Okay, so now I have these 5 questions. In first question we have 1 minus 2x raised to the power 3 by 2. You need to find fourth term. Second question में you need to find cube root of 217. 217 का cube root क्या होगा? 216 का cube root हमें पता है. We know the cube root of 216 is 6. Now we need to find 217 का cube root. That will be 6 point something. But something is what? That we are going to find out. Third में 1 upon 4 minus 3x power 1 by 2. Then 1 minus x का power minus 4. In that you need to find r plus 1th term. And last 1 plus x upon 1 minus x का whole square. You need to find coefficient of x power n. So these are the questions. Pause कर लो video. Try करो solve करने का and then you can start again and see what I am going to do. So first question I am going to solve here. Now first question अगर लिखना है fourth term तो एक idea है. Don't think about any index. Simply think about any simple binomial. और अगर ये simple binomial होता तो ये आता NC3 1 का power n minus 3 whatever and minus 2x का power 3. This would have been the fourth term. And this is sure that in this case x should be minus 1 by 2 to 1 by 2 because 2x का value minus 1 से 1 के बीच में होना चाहिए. But the idea is कि you cannot use n by NC3. So what we do? बोलो. And what we do is we write as the value. NC3 का value क्या होता है? n minus 1 n minus 2 upon 3 to 1. तो हाइपोथेटिकली दिमाग में तो NC3 चलेगा. अल्टीमेटली लिखेंगे ये. अगर सब्जेक्टिव होगा तो ऐसा लिखेंगे डायरेक्टली. ऑब्जेक्टिव होगा तो रफ में आप ये लिखने के बाद ये लिख सकते हैं. एंड देन minus 8x cube minus 2x का whole cube is minus 8x cube. Now I am going to put the value of n. और n is 3 by 2. तो 3 by 2. 3 by 2 minus 1. 3 by 2 minus 2. Upon 3 to 1 into minus 8x cube. What do we get? We are getting 3 cancel हो गया. ये 2 2 2 8 cancel हो गया. Minus and minus cancel. What we are getting is x cube by 2. What we are getting is x cube upon 2. That is the fourth term in this series. So this is just a temporary arrangement. NC3 ultimately तो ये वाला टर्म होगा. तो दिमाग में रखने का कि भाई फोर्थ टर्म है तो NC4 होगा. n plus 2th टर्म है तो NCn plus 2 लिख लो. बट दिमाग में रखने का कि NCn plus 2 का वैल्यू हाउ आर वी सपोज टू फाइंड. एक आइडिया होता है बाइनोमियल परमुटेशन कॉम्बिनेशन में सिखाया था मैंने कि सपोज यू हैव टू फाइंड NC4 देन हाउ वी राइट NC4 का वैल्यू. वी स्टार्ट विद n by 4 और फिर कंटिन्यूसली ऊपर नीचे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ में 1 सबट्रैक्ट करते जाओ. दिस विल गिव यू n minus 1 and 3, n minus 2 and 2, n minus 3 and 1. जैसे नीचे 1 मिला काम खत्म. दैट इज द वैल्यू ऑफ NC4. तो NC3 की बात करेंगे तो n by 3 से स्टार्ट किया. -1 -1 -1 -1 जैसे 1 आया काम खत्म. In the numerator and in the denominator same number of factors will be there. NC4 में 4 factor, NC5 में 5 factor, NC10 में 10 factor. सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं. ये जो सेकेंड क्वेश्चन है the same question we solve in application of derivatives in calculus also. That is called error and approximation. But here we are going to use the binomial. So what we know that कि this is 216 plus 1 का पावर 1 by 3 we need to find. Idea is
कि should I write 216 plus 1 or should I write 1 plus 216? So the usual answer is sir 1 plus 216 because 1 plus x के लिए ही defined होता है, but it is not like that because 1 plus 216 if I write वो 216 है, it is not between -1 and 1. So 216 we have to take first term. And now what? Now this is not 1. अब ये 1 नहीं है तो फिर से प्रॉब्लम है. So the idea is कि 216 कॉमन ले लो. 216 पार 1/3 कॉमन आ जाएगा and we are left with 1 plus 1/216 पार 1/3. This would be now your standard format. ये 1 fix हो गया and this is something between -1 and 1. So the whole idea is if we have two terms, then we take the larger number common. Larger number को first place पे लिख के उसको common ले लो तो ये 1 हो जाएगा and this will be smaller by larger that is less than 1. अपना आसानी से set हो जाएगा. So let's see what we are going to do from here. ये तो 6 हो गया. 1 plus x power n will be 1 plus nx plus n minus 2 upon factorial 2 into x square and so on. अब कहां तक जाना है that is totally dependent on the options. Options यहां पे क्या है? डेसिमल के 1 या 2 प्लेस तक ही होते हैं. So you have to decide कि when we are going to stop. In this case, if you see, what we have is 1 plus 1 upon 648. 1 upon 648, if I divide, what do I get? 1 divided by 648 will give me 0.0 फिर 1. What do I get? 352. Then what we get? डेसिमल है, एक और 0 आ गया. Approximately you can say 5 से थोड़ा ज्यादा आएगा. So I can say 0.0015. Next term क्या होगा? Next term is going to be very very small. Next term is going to be very very small. So that we can take 0.000 something. So if I have to write, I can say that this is 6 into 1.0015 or 16, something like that, approximately. This gives me 6 into, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.0090 या 96 ऐसा कुछ आएगा. Option में if you see, you will find something around 6.01. That is the best guess without the option. You would be having the option. आपके पास ऑप्शन होंगे. ऑप्शन देख के you can decide कि 6.009 है ऑप्शन में या 6.01 है ऑप्शन में या 6.009057 अगर ये भी हो तो आपको ये सेकेंड टर्म भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. बट यूजुअली इट इज नॉट. सो फाइनली व्हाट वी आर गेटिंग इज 6.01 and that is totally dependent on the option, but I know that decimal के 2 place से आगे पूछा नहीं जाएगा and that way we can find the answer. This same question we will be able to find in application of derivatives. तो वो जब आएगा तब करेंगे. Next question. थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है? कुछ नहीं, सीधा एक्सपेंशन करना है. सो लेट्स एक्सपैंड दिस. ट्राई करो, पॉज, अभी तक ट्राई नहीं किया तो पॉज करो वीडियो को और सॉल्व करो. द होल आइडिया इज कि दिस इज 4 - 3x का पावर -1/2 एनी इंडेक्स है. यहां 1 होना चाहिए. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, 4 पावर -1/2 कॉमन ले लिया तो 1 - 3/4x आया. 4 पावर -1/2 तो 1/2 हो गया. बट द होल आइडिया इज कि इसका एक्सपेंशन तभी डिफाइंड होगा जब 3/4x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में हो. -3/4x बोलो या 3/4x बोलो, एक ही बात है. सो दिस गिव्स मी x शुड बी -4/3 to +4/3. Only in this case you will be able to do the expansion. So this was the question. For this,
to be expanded like binomial, what should be the value of x? So value of x should lie between minus 4 by 3 and plus 4 by 3. That is this question. Fourth question देखना, 1 minus x par minus 4 में r plus 1th term we need to find. So this r plus 1th term will be what? This will be NCR. देखना NCR plus 1 में r. अब ये डिफाइंड नहीं है, but hypothetically we are writing this here. Into 1 का पार whatever minus x का पार r. That is the r plus 1th term. अब इसको एक्चुअल में सिंप्लीफाई करके लेट्स सी व्हाट वी आर गेटिंग. n minus 1, n minus 2, n minus 3 upon r minus 1, r minus 2 up to 3, 2, 1. न्यूमरेटर में भी r टर्म होने चाहिए, डिनोमिनेटर में भी r टर्म्स होने चाहिए. न्यूमरेटर में rth टर्म क्या होगा, दैट यू नीड टू टेल मी. थिंक अबाउट इट कि what is the rth term of this. So one thing is clear कि every term contain minus, तो rth term will also contain minus. That first term is 4, second is 5, third is 6, fourth is 7. You have a feeling of arithmetic progression. तो ये AP है, -4, -5, -6, -7 इज ऑल्सो एन AP. माइनस हटा दिया तो 4, 5, 6, 7 ऑल्सो एन AP. तो इस AP का rth टर्म होगा r plus 3. देखो फर्स्ट टर्म है 1 plus 3 4, सेकेंड टर्म है 2 plus 3 5, थर्ड टर्म है 3 plus 3 6, फोर्थ टर्म है 4 plus 3 7. हर जगह +3 कर रहे तो यहां पे +3 आ जाएगा ना. साथ में माइनस एक्स पावर आर. नाउ ध्यान से बात सुनना. हाउ सबसे पहले प्लस माइनस लगा देते हैं. फाइनली विल गेट प्लस और माइनस. सो फाइनली वी आर गोइंग टू गेट प्लस बिकॉज हाउ मेनी माइनस वी हैव, आर टर्म्स ऑफ माइनस, आर टाइम्स माइनस, और यहां भी आर टाइम्स माइनस है. 2r टाइम्स माइनस हो गया. r टाइम्स माइनस यहां है और r टाइम्स माइनस वहां है, तो 2r टाइम्स माइनस हुआ. दैट इज इवन नंबर ऑफ टाइम माइनस एंड दैट विल गिव यू प्लस. सो दैट इज योर प्लस. x पावर r is already there, no need to worry about this. And then we have the coefficient. So pause the video and think about कि ultimately हमें क्या मिलने वाला है. बिकॉज ऊपर भी r टर्म्स है, नीचे भी r टर्म्स है, ये माइनस को यू डोंट हैव टू वरी अबाउट. सो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इज 1 2 3 4 5. इफ आई से 4 से लेकर के r तक, 4 से लेकर के r तक कैंसिल हो जाएगा. बचा क्या, बचा r plus 1, r plus 2, r plus 3 न्यूमरेटर में. बिकॉज ये माइनस कॉमन है पूरे का, माइनस आर माइनस 3 है, माइनस निकल गया तो r plus 3 बचा. इसके पहले r plus 2, उसके पहले r plus 1, 3 टर्म ऊपर बचे और 3 टर्म ही नीचे बचे. सो दिस इज योर r plus 1th टर्म. दिस इज योर r plus 1th टर्म. r को 0 पुट करोगे तो क्या मिलेगा. If I put r equal to 0, I get 1 2 3 upon 1 2 3 cancel, 1 आएगा. r प्लस की जगह 0 पुट किया, फर्स्ट टर्म आया. फर्स्ट टर्म तुम्हें पहले से पता है 1 plus nx होता है. फर्स्ट टर्म तो 1 होगा, देखो 1 आया. सेकेंड टर्म होता है 1 plus nx. There should be 4x. सेकेंड टर्म should be 4x. सेकेंड टर्म मीन्स r को 1 पुट करेंगे. If I put r equal to 1, I get 2 3 4, r को पुट किया 1, देखना 2 3 2 3 कैंसिल, क्या मिला 4x. सो दिस इज योर r plus 1th टर्म. ध्यान देना ये कुछ होता नहीं है, सिर्फ एक कॉम्प्लीमेंट्री यूज के हिसाब से हमने लिखा है. इट विल नॉट बी पार्ट ऑफ योर सब्जेक्टिव राइटिंग. ऑब्जेक्टिव में तो रफ वर्क है, यू कैन राइट. तो दिमाग में रखो कि एनसीआर है तो एनसीआर ही होता है, और एनसीआर का वैल्यू कैसे लिखना है दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, वो मैंने यहाँ आपको बताया.
तो रिमेंबर दिस कि हाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ NCR. वी स्टार्ट विद N by R, ऊपर नीचे साथ में -1 -1 -1 -1 करते जाओ जब तक डिनोमिनेटर में 1 नहीं आता है. सेकेंड पॉइंट, नीचे भी R टर्म्स होंगे और न्यूमरेटर में भी R टर्म्स ही होंगे. एंड नेक्स्ट इज फिफ्थ क्वेश्चन, x पावर n का कोफिशिएंट फाइंड करना है. x पावर n का कोफिशिएंट कैसे फाइंड करें? सो द आइडिया इज कि ये 1 + 2x + x², ये तो न्यूमरेटर हो गया. डिनोमिनेटर को आई नीड टू राइट लाइक दिस, क्योंकि 1 + x का पार्ट 2 है, वो तो सिंपल बाइनोमियल से एक्सपेंशन कर लो या सिंपल फॉर्मूला लगा दिया. लेकिन दिस इज नॉट समथिंग वेरी सिंपल, दिस इज फॉर एनी इंडेक्स का कॉन्सेप्ट है. सो व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x पावर n. तो याद करो बाइनोमियल में जब पहले r + 1 टर्म पढ़ाया था, सो फर्स्ट जो काइंड ऑफ क्वेश्चन था उसमें क्या था, 1 + x पावर 5 है, सेकेंड टर्म फाइंड करो, 2 - 3x, उसका 10th टर्म फाइंड करो, 2x - 3/x 15th टर्म फाइंड करो, एंड सो ऑन. एंड देन देयर वर क्वेश्चंस लाइक दिस कि दिस इनटू समथिंग पावर n, उसमें x पावर 10 का कोएफिशिएंट फाइंड करो. व्हाट वी यूज्ड टू डू इज इस 1 में x पावर n वाला टर्म मल्टीप्लाई करने पे x पावर n आएगा. ये +2x में we need to multiply the term containing x power n minus 1, and in this x square we need to multiply term containing x power n minus 2. ये जो पार्ट्स हैं वो कहां से आने वाले हैं, ये यहां से आने वाला है. Now how many of you exactly know the coefficient of x power n minus 1 n minus 2 in this? कैलकुलेट करके इस तरह कहाँ गया, इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे मिल जाएगा. rth टर्म कैलकुलेट कर लो, उसके बाद या r + 1th टर्म कैलकुलेट कर लो, x पावर r का कोफिशिएंट मिल गया. अब r को n रखेंगे तो ये कोफिशिएंट आएगा, r को n - 1 रखेंगे तो ये कोफिशिएंट आएगा, r पावर n - 2 है, n - 2 रखेंगे तो आएगा. लेकिन वी आर नॉट गोइंग टू डू ऑल दोस ट्रबल्स बिकॉज ये हमें स्टैंडर्ड पता है क्या होता है. याद आया, 1 - x का पावर -2, ये AGP वाला सीन है. ये वाला सीरीज अभी हमने लास्ट टाइम देखा था, मैंने बोला था आपको याद करना है. ये लास्ट स्क्रीन पे लास्ट यहां पे लिखा हुआ था, दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर ऑलवेज. तो ये बताओ x पावर 5 का कोफिशिएंट क्या है? x पावर 5 का कोफिशिएंट होगा 6, x पावर 3 का 4, x पावर 2 का 3, 1 ज्यादा है, x पावर 5 का 6, x पावर 7 का 8, x पावर 10 का कोफिशिएंट 11, x पावर n का कोफिशिएंट. तो x पावर n का कोफिशिएंट n + 1, x पावर n - 1 का कोफिशिएंट n, और x पावर n - 2 का कोफिशिएंट n - 1. Adding all those, what do I get? Adding all these, I will get 2n n, that is 4n, plus 1 minus 1 cancel. So what we are getting is actually 4n. तो x पावर n का कोफिशिएंट हो जाएगा 4n. As simple as that. Let's do one thing. If I multiply these two, x का कोफिशिएंट क्या होगा? What would be कोफिशिएंट of x? Let's find out. इस 1 को सब जगह मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 2x will be multiplied to every term, x² multiplied to every term. There will be 3 times infinite terms. But x का कोफिशिएंट चाहिए, तो 1 को 1 में मल्टीप्लाई करने से नहीं मिलने वाला है, 1 को 2x में मल्टीप्लाई करने से मिलेगा, तो एक टर्म ही आएगा. Now 1 multiplied to 3x square will not give you power x का पावर 1. 1 multiplied to x cube will not give you x power 1. तो leave it. 2x की बात करते हैं. 2x multiplied to 1 will give you 2x. 2x multiplied to 2x will not give you x power 1. That will be x power 2. 2x into x, 3x square, x cube, x power 4, x power 5. We don't need them. X square into 1, no need. X square
into anything we don't need, because we need x power 1. So what we are getting here is 4x. तो x power 1 का कोफिशिएंट 4x, x power 2 का कोफिशिएंट 8x, सॉरी 8, x power n का कोफिशिएंट 4n, x power 10 का कोफिशिएंट 40, x power 20 का कोफिशिएंट 80 and so on. So this was as simple as that. So now we have one more question. बाइनोमियल नहीं है, ट्राइनोमियल है. हमारे कोर्स में सिर्फ बाइनोमियल है फॉर इंटीग्रल इंडेक्स, पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स. मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा आपको कराया फॉर एनी इंडेक्स, और ये तो ट्राइनोमियल फॉर एनी इंडेक्स जैसा लिख रहा है. सो व्हाट कैन वी डू? लेट्स सी. What do you see in the bracket is a quadratic, and quadratic 20x square minus 9x plus 1. You have done the quadratic equation till now, I suppose कि आपने quadratic कर लिया होगा. And quadratic में I told you golden rule number 1. What is that? What are we going to do here? And the golden rule number 1 was quadratic में if we know the numerical value of ABC or some correlation between them, first thing we do is try to find the roots. इसके roots find करते जरा. इसके roots find करोगे तो minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a. 9 plus minus 1 by 40. 10 by 40, 1 by 4 and 8 by 40, 1 by 5. So the roots are 1 by 4, 1 by 5. So factors will be x minus 1 by 4, x minus 1 by 5, power minus 1. बोलो कोई problem? If alpha is a root, then x minus alpha is a factor. But this is actually wrong. इसमें क्या wrong है? That you need to find. And the wrong is कि साथ में a लिखना compulsory होता है. If we have an equation ax square plus bx plus c, उसके रूट्स अल्फा बीटा हैं, तो उसका फैक्टर x माइनस एक्स अल्फा और x माइनस बीटा होगा. बट साथ में you have to write this a. तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या है? a का वैल्यू है 20, नहीं 1 by 20. 20 पावर माइनस 1 है ना, तो 1 upon 20 आएगा. Now we can simplify this like 1 by 20, 4x minus 1, 5x minus 1 पावर माइनस 1, और ये कैंसिल हो गया. एलसीएम था बाहर आया, कैंसिल हो गया. Some people say, sir 20 400 होगा. No, think about this. This is power minus 1 है, तो this will be the actual C. Now what? Any index का केस है, तो what we need to do is we need to write 1 minus 4x and 1 minus 5x. दोनों में माइनस किया तो that is okay. अब if I expand this, I will get something 1 plus 4x plus 16x square plus 64x cube and so on. काफी फास्ट लिख दिया मैंने शायद. कैसे? How did I write this so fast? ऐसे 4 terms कैसे find किए? I am not using binomial expansion. What I am using is infinite GP. ये 1 upon 1 minus 4x है. A upon 1 minus r. वो क्या होता है? AR square, AR cube. वही लिखा है. A is 1, R is 4x. तो 4x multiply करते जाओगे मिल जाएगा. Here if you see, what do we get? 1 plus 5x, 25x square and so on. And then we can multiply this. Not looking good. So what is the whole scene? कहानी क्या है? Question का मतलब क्या है? Suppose we have to find coefficient of x power 5. How do I do that? So that is the whole question कि इसको multiply करना बचा हुआ है, मतलब this is not the right way we are going. So the whole idea that I am going to tell you, ध्यान से सुनना कि ये बाइनोमियल थ्योरम नहीं है. एनी इंडेक्स है और वो भी मल्टीनोमियल का. एक्चुअली वी आर गोइंग टू कन्वर्ट दिस टू बाइनोमियल ऑफ एनी इंडेक्स. हाउ कम? ये क्या मिला हमें? दिस इज एक्चुअली 1 upon 4x minus 1 into
5x minus 1. What we are going to do here is we are going to do the partial fraction. What are we going to do? We are going to do partial fraction. मतलब इसके दो पार्ट्स हम करने वाले हैं, दो सिंपल पार्ट. पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब फ्रैक्शन के पार्ट्स करना. सपोज जैसे 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस 2 अपॉन 3 माइनस x, सपोज ऐसा गिवन है. सो व्हाट वी यूज्ड टू डू, एलसीएम ले लेते थे, फिर मिला 3 माइनस x प्लस 2x माइनस 2, दैट इज x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू 3 माइनस x. This is called simplifying, combining the two. What I am going to do is splitting to this. यहां से यहां आने वाली बात उल्टा. तो कॉमन लेना, एलसीएम लेना, ग्रुप करना का उल्टा प्रोसेस होता है पार्शियल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के पार्ट्स करना. इसका जो पूरा डिटेल है वो आपको 12th में सिखाया जाएगा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के चैप्टर में. इनडेफिनिट में देयर विल बी अ 2-3 videos of partial fraction. पूरा का पूरा एक सेक्शन ही है, but here I am going to give you a simple idea. And the simple idea is कि दोनों में x का कोफिशिएंट सेम कर लो. Now we have to something multiply, divide. क्या करना है? तो यहां नीचे 20 कॉमन आया है बेसिकली. यहां से 4 कॉमन निकाला, यहां से 5 कॉमन निकाला. Now if you see, इन दोनों का या तो सम या डिफरेंस कांस्टेंट होगा. टेल मी व्हाट, इनका सम कांस्टेंट है या डिफरेंस कांस्टेंट है? तो इफ यू सी, तो इनका डिफरेंस कांस्टेंट है. व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ दीज टू? द डिफरेंस ऑफ दीज टू इज x minus 1 by 4 minus x minus 1 by 5. What is this? x और x कैंसिल हो गया. माइनस 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 5 इज व्हाट? माइनस 1 बाई 4 0.25 माइनस के साथ प्लस 1 बाई 5 0.2, दैट गिव्स मी माइनस 0.05, दैट इज माइनस 1 बाई 20. ये जो एक्सप्रेशन लिखा है मैंने, इसका वैल्यू माइनस 1 बाई 20 है. और माइनस 1 बाई 20 अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो माइनस 1 बाई 20 डिवाइड भी कर देते. और पुराना अपने पास 20 है, x माइनस 1 बाई 4 है, x माइनस 1 बाई 5. 20 कैंसिल हो गया. व्हाट वी गॉट इज, ये काम करते ये वाला माइनस इस माइनस के साथ सेट करेंगे तो ये प्लस और माइनस हो गया. नाउ सेपरेट दिस टू. व्हाट डू आई गेट इज 1 अपॉन x माइनस 1 बाई 4 माइनस, ये कैंसिल, ये बच गया 1 अपॉन x माइनस 1 बाई 5. थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं. इफ वी सिंप्लीफाई अ बिट मोर, आई विल गेट 4 अपॉन 4x माइनस 1, 5 अपॉन 5x माइनस 1. And this is it. If you want, you can simplify it more. 5 upon 1 minus 5x, 4 upon 1 minus 4x. All this is not part of binomial but part of partial fraction. आप अभी सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, you will be able to manage easily, so don't worry about it. एक काम करते हैं, चेक करते हैं जरा कि ये सही है या रॉन्ग है. अगर आपको ये टर्म दिया होता तो हम एलसीएम लेते. एलसीएम वुड हैव बीन 1 minus 5x 1 minus 4x. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 minus 20x minus 4 plus 20x. 5 minus 4 is 1 upon 1 minus 5x 1 minus 4x. देखो वहीं से स्टार्ट किया था. 1 upon 4x minus 1 5x minus 1. 1 minus 4x 1 minus 5x. So this is now looking like this. So what I can say that this is actually 5 into 1 minus 5x power minus 1 minus 4 into 1 minus 4x power minus 1. Now what? What is this?
1 a अपॉन 1 माइनस आर, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, एक्स की जगह 5x है, तो इधर यू डू इट विद बाइनोमियल थ्योरम इन इंडेक्स पूरा एक्सपेंशन, या फिर सिंपल याद कर लो 1 अपॉन 1 1 माइनस एक्स पावर माइनस 1, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स a अपॉन 1 माइनस आर, फर्स्ट टर्म 1 कॉमन रेशियो 5, तो 5x, 5x का स्क्वायर, 5x का क्यूब एंड सो ऑन, minus 4 into what will be this, think of it, pause कर लो, 1 plus 4x plus 4x का square plus 4x का cube. Now if I ask you what is the coefficient of x power n, x power n का coefficient क्या होगा, so answer will be एक्स स्क्वायर के साथ 5 स्क्वायर, एक्स क्यूब के साथ 5 क्यूब, एक्स पावर 7 के साथ 5 पावर 7, एक्स पावर n के साथ 5 पावर n मल्टीप्लाइड टू 5 विल बी 5 पावर n माइनस n प्लस 1 माइनस 4 एक्स, एक्स स्क्वायर के साथ 4 स्क्वायर, एक्स क्यूब के साथ 4 क्यूब, एक्स पावर 5 के साथ 4 पावर 5, तो अल्टीमेटली वी आर गेटिंग 4 पावर n plus 1. And this is the value, this is the coefficient of x power n in this expansion. So this is basic, this was basically a difficult part जहां पे 1/4 1/5 आया था. Second part, you don't know about the partial fraction, but एक basic idea what I gave you कि दोनों x का coefficient 1 कर लो, देन उनका सम या डिफरेंस कुछ कांस्टेंट होगा, वो मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो और अपने आप टर्म्स विल बी सेपरेटेड एंड यू विल बी एबल टू फाइंड द आंसर. इफ आई गिव यू वन एग्जांपल, 1 अपॉन x माइनस 2 इंटू 5 माइनस एक्स, यू नीड टू फाइंड कोफिशिएंट ऑफ से x पावर 5 और x पावर n और वॉट एवर. एक बार ये फॉर्म में आ गया फिर तो सब कुछ आसान हो जाएगा. सो पॉज करो वीडियो को और सॉल्व करने का ट्राई करो. आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस. x का कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 है, 1 माइनस 1 बोथ विल डू. इनका सम या डिफरेंस क्या कांस्टेंट है, इनको ऐड करोगे तो मिलेगा 3 कांस्टेंट, सबट्रैक्ट करोगे तो मिलेगा 2x माइनस 7 नॉट सो कांस्टेंट. सो व्हाट वी डू इज इनका डिफरेंस x माइनस 2 सॉरी प्लस इनका समेशन, ये मैंने मल्टीप्लाई किया विच इज एक्चुअली इक्वल टू 3. तो अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, एल्स वैल्यू विल चेंज. सो इफ यू सी हियर, ये जो मैंने मल्टीप्लाई किया है वही मैंने डिवाइड भी किया है, सो दैट वैल्यू विल नॉट चेंज. नाउ व्हाट वी गेट, आई विल गेट 1/3 अलग किया. नाउ टेल मी, न्यूमरेटर में 2 पार्ट्स है, दोनों को सेपरेट कर दो. What is this? X minus 2 upon x minus 2 5 minus x is 5 minus x, and 5 minus x upon x minus 2 5 minus x is x minus 2. सिंपल फॉर्म आ गया. थोड़ा और स्टैंडर्डाइज अगर करते हैं, सो दिस विल बी 1 अपॉन 5 कॉमन लिया 1 माइनस x माइनस 5 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 कॉमन लिया तो 1 माइनस x/2. ऑल गुड, खत्म हो गई बात. दिस इज 1/3 इंटू 1/5 इंटू ये 1 अपॉन 1 माइनस x/5 है. वी नो दैट दिस इज अ जीपी ऑफ फर्स्ट नंबर a एंड कॉमन रेशियो x/5. एंड सो ऑन. माइनस 1/2, माइनस 1/2 के साथ क्या आएगा, a अपॉन 1 माइनस r, दैट विल बी 1 प्लस x/2 प्लस x/2 का स्क्वायर एंड सो ऑन. एंड दैट इज द होल आइडिया. कैन यू टेल मी व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म इन दिस? कैन यू टेल मी व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म? सो द कांस्टेंट टर्म 1/3 into 1/5 minus 1/2, that is a constant term. वैसे constant term निकालने का एक और सिस्टम है. In any expansion,
in any polynomial expansion, to find a constant term, just replace x by 0. x को 0 से इक्वेट किया, काम खत्म. तो यहां क्यों करना, यही कर लो ना. x को 0 से इक्वेट करो, what do we get? 1 upon -2 into 5 -1 by 10, खत्म. यहां सिंप्लीफाई करोगे वही आएगा. So in any expression, to find the constant term, we just replace all the variables equal to 0 and you are done with that. हाँ, x का कोफिशिएंट क्या आएगा? तो x का कोफिशिएंट, सॉरी ये स्क्वायर नहीं होगा, x का कोफिशिएंट आएगा 1/3 into 1/5 into 1/5 minus 1/2 into 1/2. So इस टाइप के दो टर्म हो गए जो हमें चाहिए. Everything will be able to find. So if you see something like this, or better, if you see something like this, you'll be able to split. Maybe not now, but जब इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ेंगे, if you really want to learn this, तो आप इंटीग्रेशन वाले चैप्टर पे जाइए, पार्शियल फ्रैक्शन का सेक्शन उठाओ, फर्स्ट सेक्शन में you will be able to find everything. But वैसे अपने सिलेबस में नहीं होता है. सिंपल एनी इंडेक्स भी सिलेबस में नहीं है, फिर ये कॉम्प्लेक्स वाला तो नहीं होगा. बट स्टिल इफ यू वांट यू कैन लर्न अबाउट इट. सो दिस इज बायनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स. थैंक यू.